Jai Shardema everyone. I hope you have seen the videos of previous chapter and completed the exercises also. Is it? Yes, I know you have completed. Okay, so today we have to start our second chapter, that is natural resources. But before starting the chapter, what we have to do? Yes, we have to recite the shloka. Chalo. Everyone will speak the shloka after me. Okay? विद्यां ददाति विनयम् विनयाद् याति पात्रताम् पात्रत्वात् धन आप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्. Okay, so now we are back again. In the previous chapter, we have studied about the location of places. That means how can we locate the places with the help of latitudes and longitudes. We can do that with the help of grid. Now we have to start with our next chapter, that is natural resources. Natural resources, as the name suggests, जैसे कि नाम से आपको पता चलता है क्या मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज का. नेचुरल रिसोर्सेज सिंपली मीन्स द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर. नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती है. व्हाट वी गेट फ्रॉम नेचर, क्या मिलता है हमें नेचर से. ओके, टेल मी व्हाट वी गेट फ्रॉम नेचर. Actually, we will get everything from nature. हमें almost everything. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें नेचर से नहीं मिलती. With the help of these natural products, we made some other products also. But the most probably we get maximum things from the nature, such as, see, you are able to see, we get rocks. Rocks हमारे लिए बहुत important होते हैं. These rocks are very useful in construction work में, या tiles, houses, वो सब चीज़ें बनाने के लिए हमें यूज़ होती हैं. Minerals, coal, petroleum, air, water, plants, animals, all these are considered as the natural resources. ये सारी चीज़ें हमारे natural resources हैं. See, as it is given in your textbook, natural resources are provided us by nature. मीन्स कि नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं. These include soil, sunlight, rocks, minerals, plants and animals. अब इसमें क्या क्या होता है? Actually air, water, coal, petroleum, everything is included in the natural resources. We use these gifts of nature to meet our daily needs. Yes, these resources are actually the gift of nature because nature does not charge anything for that. Whenever we get something, जब हम मार्केट से कुछ परचेज करते हैं, we have to pay something. हमें कुछ तो उसका अमाउंट पे करना होता है. But the nature gives us all these resources free of cost. नेचर उसके लिए हमसे कुछ लेती नहीं है. Always it provides us the fresh air, fresh water, and all these are our necessities. ये हमारी necessities हैं. Without this air, water and natural resources, we are not able to live. हम नहीं रह सकते. So these natural resources are actually the gifts of nature. ये नेचर का हमारे लिए गिफ्ट है, विच वी यूज फॉर आवर डेली नीड्स.
जिसे हम अपनी डेली नीड्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नीड द सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा? एवरी टाइम देयर विल बी डार्कनेस, डार्कनेस होगा। वी नीड द वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अगर पानी नहीं होगा, सो व्हाट वी कैन डू? कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट वाटर? नो, वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट वाटर। Same as air, we need the oxygen for breathing. Without breathing, if we will not breathe, how can we survive? अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? चलिए, leave that, not the breathing, but if we breathe in a dirty air, then also it is very difficult for us to survive. So nature provide us the clear, that air, oxygen. Early humans did not know how to use these natural resources. जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे, जो सबसे पहले ह्यूमंस थे हमारी अर्थ पर, जिन्हें हम स्टोन एज भी कहते हैं, those they were not knowing how to use these natural resources. वो नहीं जानते थे कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। वो जैसे मन आता था उन्हें यूज करते थे, डिस्ट्रॉय करते थे, वेस्ट करते थे, बिकॉज उन्हें उनकी वैल्यू नहीं पता थी। एंड एट दैट टाइम ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज वर इन प्लेंटी ऑफ अमाउंट। वो बहुत सारी क्वांटिटी, प्लेंटी ऑफ अमाउंट में हमारे पास थे। बट नाउ फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स वी आर यूजिंग दैम। मिलियंस ऑफ ईयर्स से हम उन्हें यूज कर रहे हैं। नाउ दे आर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग। अब वो धीरे 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 डिक्रीज होते जा रहे हैं। सो वी हैव टू लर्न हाउ टू हार्नेस, वी हैव टू learn to harness them to make useful things and make our life easy. हमें सीखना होगा how we can utilize these natural resources in the best way that we also can use that and it can be preserved for our next generations. जैसे हमारे जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने भी तो धीरे धीरे यही सीखा कि कैसे इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है, बट दे डिड नॉट नो how to use these natural resources in such a manner कि हम यूज करें बट हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी उसे संभाल के रखें। बट एज वी नो, जैसा कि अब हम जानते हैं, these natural resources are about to end. अब ये नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जैसे हम उन्हें धीरे धीरे यूज करते जा रहे हैं, they are being depleted. So we have to use them in such a manner that we will use them easily. But हमारे यूज के साथ साथ हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए भी उन्हें प्रिजर्व कर सके। Otherwise our next generations will not be able to survive. Natural resources became valuable only when we are able to convert them into useful products. हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉरेस्ट हैं, सी फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, उनकी वैल्यू कब है? जब हम उन्हें बेस्ट मैनर में यूज करें। इफ वी आर यूटिलाइजिंग देम इन अ वेस्ट वे, फॉर एग्जांपल जैसे हम अपनी पर्सनल नीड्स के लिए ट्रीज को, फॉरेस्ट्स को कट करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा? क्या होगा? यस, हमारी अर्थ से ऑलमोस्ट ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ग्रीनरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो ट्रीज हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, टिम्बर, वुड एंड क्लीन एयर, रेन वाटर, सॉइल इरोजन से प्रोटेक्शन, सो ये सारी चीज़ें जो हमें प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। सो दैट इज़ द वन एग्जाम्पल। दैट मीन्स ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तभी यूजफुल हैं, तभी इनकी वैल्यू है जब हम इनको बेस्ट मैनर में
यूज करें, ना कि वेस्ट तरीके से, सच एज वाटरफॉल्स. यस, द बेस्ट एग्जाम्पल waterfalls. From the waterfalls we can generate the hydroelectricity. जो waterfalls है, these are natural, ये गॉड गिफ्ट होते हैं. सो नेचर ने हमें ये गिफ्ट दिए हैं. फ्रॉम दिस गिफ्ट वी कैन जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हम उस बहते पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी यूजफुल फॉर अस. वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. As we know, during the daytime we have sunlight, but what about the night? At the night time we need the light, and even during the daytime in summers we need the fans and all. So we need the electricity for moving the machines. We need the electricity. There are still some resources in the world that are unknown to us, or we are unaware of how to harness them. Harness. See the students, on the downside of your page you have given the meaning of harness. Harness means control and make use of any useful natural resources. That means किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज, कंट्रोल एंड मेक यूज, उसका बेस्ट यूज इन सच ए मैनर. बेस्ट यूज का मीन्स होता है यूज इन सच ए मैनर दैट वी विल यूज देम, बट विद दैट वी कैन प्रिजर्व देम फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन. हम उनका इस्तेमाल करें, पर हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी उन्हें प्रिजर्व करके रखें. So this is called the harness. That means the best utilization of natural resources. There are some natural resources in the world which are unknown to us. It is not confirmed कि जितने natural resources के बारे में हम जानते हैं, हमारी दुनिया में सिर्फ उतने ही natural resources हैं. Might be there are some natural resources about them we don't know. शायद ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हों जिनके बारे में हम ना जानते हों, और माइट बी इफ़ वी नो वी डोंट नो हाउ टू हार्नेस देम. अगर कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हम जानते भी हैं, तो माइट बी हम ये नहीं जानते कि उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए. दैट्स वाई many countries in the world have not been able to completely use of their natural resources. वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती, एंड दैट इज़ द रीज़न these countries are considered as economically backward. Economically backward, that means they are not developed. वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, उनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है. सो ऐसी कंट्रीज जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं करती या बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन नहीं करती, ऐसी कंट्रीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड होती हैं. मीन्स कि वो बाकी की कंट्रीज से थोड़ा पीछे होती हैं डेवलपमेंट में. बाकी की कंट्रीज जिन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का completely और बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है, they are much better than the countries which are not able to utilize their natural resources completely. Okay. On the other hand, they have been spread from environmental damage that often goes hand in hand with the exploitation of natural resources. What does that mean? Because these countries they don't know how to utilize the natural resources in the best way, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज करना है. दे आर कंटिन्यूसली यूटिलाइजिंग देम फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स. वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उन्हें जैसे चाहे यूज़ करते रहते हैं, एंड इन दैट मैनर दे आर एक्सप्लॉइटिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज.
वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लॉइटेशन? एक्सप्लॉइट का मतलब होता है उन्हें खत्म करना या वेस्ट करना। यू कैन से द वेस्ट, यस। So, because these countries don't know the best utilization of the natural resources, तो वो उन्हें यूज करते रहते हैं. This is how they are being destroying them. वो उन्हें destroy करते जा रहे हैं. See, I have given you one example about the forest. See, forests are the natural resources. Forest provides us a lot of things. अगर हम फॉरेस्ट को सिर्फ कट करते रहेंगे, उसकी जगह पर नए ट्रीज को ग्रो नहीं करेंगे, देन व्हाट हैपन? इफ वी विल कंटिन्यूअसली कट द फॉरेस्ट, एक दिन ऐसा आएगा जब सारे के सारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, देन वी आर नॉट एबल टू गेट द थिंग्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट. सो whenever we cut a tree on a separate place, we have to grow a tree. जब भी हम कोई ट्री कट करें, हमें कहीं ना कहीं एक ट्री जरूर ग्रो करना चाहिए. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सी स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. क्लासिफिकेशन दैट मीन्स उन्हें डिवाइड करना. We can divide them, we can classify them into two groups, two categories, that is living resources or biotic resources and non-living resources or abiotic resources. As the name suggests, living, that means which have life, and non-living, that means they don't have life. Okay, the living resources regenerate if the conditions are favorable. Yes, living resources वो resources होते हैं जिन्हें regenerate किया जा सकता है, मतलब दोबारा create किया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है, but only and only when the conditions are favorable. ऐसा नहीं कि हम हमारी मर्जी से उन्हें कभी भी रीजनरेट कर सकते हैं. ये नेचुरल रिसोर्सेज रीजनरेट हो सकते हैं, बट उनकी कुछ कंडीशंस हैं, वो फुलफिल होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ट्रीज आर द लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज. दे कैन बी रीजनरेट. उन्हें फिर से हम वापस से ट्री ग्रो कर सकते हैं, बट कब? द ट्री can only grow when it gets air, water, sunlight. अगर हम ट्री को एयर, वाटर, सनलाइट ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, how can it survive? So natural resources can regenerate if and only if the conditions are favorable. जब उन्हें उनकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तभी उन्हें रीजनरेट किया जा सकता है. For example, forest, as I told you already, crops, grasses, wild and domestic animals. You know, all these things can be regenerated. ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज को रीजनरेट किया जा सकता है, बट उनकी अपनी एक कंडीशन होती है. सेम लाइक द फॉरेस्ट, क्रॉप्स को अगर सीड्स, वाटर और प्रोटेक्शन ना दी जाए तो क्रॉप्स भी ग्रो नहीं करेंगी. सेम एज वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. ओके, सो these are the living resources which are also called biotic resources. Now let's move to the next category of natural resources, that is non-living resources. Non-living resources, it includes land, water, air, sun. All these things are included the non-living resources. These are inexhaustible. See, on the downside of your page you have given the meaning of inexhaustible. क्या मतलब होता है inexhaustible का?
इनएग्जॉस्टिबल मीन्स अनलिमिटेड, कभी ना खत्म होने वाली। एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन, जितनी बार भी हम उन्हें यूज करें वो खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल लिविंग रिसोर्सेज ट्री। एक ट्री को हमने एक बार कट कर दिया, अब ऐसा तो नहीं कि वो ट्री दोबारा से ग्रो हो जाएगा। वी कैन ग्रो द ट्री बट ऑन द अदर प्लेस। ऐसा तो नहीं कि हमने एक ट्री को कट किया, उसकी जगह पे दूसरा ट्री ग्रो हो जाएगा। ट्रीज ग्रो होंगे पर इट विल टेक टाइम, और वो दूसरे प्लेस पर होंगे। बट सच एज लैंड, एयर, वाटर। लैंड, अगर हमने सॉइल यूज की है तो वो जगह दूसरी सॉइल से फिल की जा सकती है। इफ वी टेक 1 बकेट वाटर फ्रॉम अ रिवर, तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पे स्पेस रह जाएगा कि हाँ यहाँ से हमने 1 बकेट पानी निकाल लिया, अब ये स्पेस रह गया। नहीं, द रेस्ट वाटर फिल द स्पेस। So all these are resources are inexhaustible. That means they are unlimited in amount. We can use them in the with our wish. हम उन्हें कैसे भी यूज कर सकते हैं। They are also called the renewable resources. इन रिसोर्सेज को रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जा सकता है, बिकॉज कि उन्हें रीन्यू किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डर्टी वाटर। जो डर्टी वाटर होता है उसे क्लीन किया जा सकता है, राइट। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को एक बार खराब होने पर उन्हें फिर से यूज करने लायक बनाया जा सकता है। वी कैन क्लीन द एयर, वी कैन मेक द सॉइल फर्टाइल। सो हम वो सारी चीजें कर सकते हैं। That's why these are also known as renewable resources. Apart from these resources, that is land, water, air, which are inexhaustible and renewable, there are some other sources which are exhaustible, like inexhaustible. Inexhaustible, that means unlimited. So exhaustible, the opposite of that means limited. कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं, सच एज मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, कॉयल, पेट्रोलियम। दीज आर नॉन लिविंग रिसोर्सेज बट दे आर एग्जॉस्टिबल। ये भी सारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, जैसे मिनरल्स है, कॉयल है, पेट्रोलियम है। ये सारे भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, बट दे आर एग्जॉस्टिबल। वो लिमिटेड अमाउंट में है, बिकॉज ऑल दीज रिसोर्सेज टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस। इनके प्रोडक्शन में, दैट डज नॉट मीन कि इन्हें प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। दे कैन बी रिप्रोड्यूस, बट it take millions of years, and we will not be survive for the millions of the years. That's why these resources are considered as the exhaustible or non renewable resources. इसीलिए इन रिसोर्सेज को एग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है, बिकॉज ट्रीज कैन ग्रो इफ वी विल ग्रो द ट्री। अगर हम सीड्स को ग्रो करते हैं तो वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। इट टेक टाइम बट लेस टाइम। बट कॉयल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये सारे रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, एंड we don't have millions of years. We will not be survived for the millions of years. That's why we consider these natural resources as the exhaustible and non-renewable. इन्हें exhaustible क्योंकि वो limited amount में है, और non-renewable क्योंकि उन्हें आसानी से renew नहीं किया जा सकता। They are considered as the non-renewable resources. Clear, students? Okay, in this video we have completed our half chapter
Now for the rest of the chapter, we will see the another video. Till then, bye.